Very good afternoon. In our previous lectures, we have covered the topic related to the climate and climate change, as well as the conservation of energy. Why the conservation of energy is very necessary to all of us. Now, we will talk about the storage system. What is the significance of storage system? So you can see over here, contents having introduction, background of storage system, different energy storage technology, comparison of different storage technology, conclusion. सबसे पहले हम बात करते हैं what firstly we will talk about the introduction for the energy storage. So the first question is that to you what is energy storage system for renewable energy? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को स्टोर करने के लिए कौन कौन से एनर्जी स्टोरेज है? वाई डिट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर क्यों है? फंक्शन ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का फंक्शन क्या है? Now, the background of storage system. Storage system is an essential unit that stores unstable electric energy during wind and photovoltaic power generation, which is sharply growing new renewable energy and supplies the unstable energy to electric power system again in necessary moment. स्टोरेज क्या है? स्टोरेज एक एसेंशियल यूनिट है जो कि स्टोर करता है अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ड्यूरिंग विंड एंड फोटोवोल्टाइक पावर जनरेशन, विच इज शार्पली ग्रोइंग न्यू रिन्यूएबल एनर्जी and supplies the unstable energy to electrical power system again in necessary moment. स्टोरेज जो है वो अनस्टेबल एनर्जी को क्या करता है? अपने में स्टोर करता है, और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है? उसको प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है. If there is no such energy storage unit, then what happens? Then any kinds of serious problems like sudden blackout occurs because of unstable sunlight dependent electricity supply. ठीक है, मान लो कि बैटरी ना होती और उसको हम स्टोर ना कर पाते इलेक्ट्रिसिटी में, और सीधे सनलाइट का सीधे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट जो मिलता है, जब तक सनलाइट पड़ती तब तक क्या होती है? लाइट जलती है. मान लो बैटरी ना होती, स्टोरेज डिवाइस ना होती तो क्या होता? वेदर ख़राब होता, मौसम ख़राब होता तो कई दिनों कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ता. इसलिए ऐसे ड्यूरेशन के लिए भाई हमको स्टोरेज सिस्टम ज़रूरी है. This storage takes an important part in electricity storage system for households, a medium-sized system for industrial, commercial use, and the extra large system for power plants and substations like frequency regulations. ठीक, आप फ्लाईव्हील की बात कर लो. अगर फ्लाईव्हील ना होता तो बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे मशीन से आप एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम में वहाँ पे मिल ही ना पाती. क्राइम केस में अगर ऑटोमोबाइल व्हीकल में बात करो तो अलग से जो एनर्जी चाहिए होता, कहाँ से मिलती? बैटरी से मिलती है. सो स्टोरेज सिस्टम इज मस्ट. Then flywheel energy storage. Here you can see a diagram. The flywheel energy sources. Here is the lower magnetic bearing system is located over here. This is the turbocharger, gimbal ring,
motor rotor, fiber composite cylinder is over here, central shaft is over here, upper magnetic bearing system is placed at the top portion, vacuum pump is over here, and then this is containment vessel. And this whole diagram is related to the flywheel energy storage. What is the flywheel energy storage? Flywheel energy storage are those systems जो कि किसके लिए होता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है, एंड दे स्टोर एनर्जी मैकेनिकली इन द flywheel rotor by rotating the rotor, while as chemical batteries stores energy electrically. When we want to use the stored energy in the rotor, a generator is used to convert that mechanical energy into the electrical energy. ठीक है, तो फ्लाईव्हील में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, मैकेनिकली स्टोर होती है। ठीक, और ये मैकेनिकल एनर्जी अगर इसको फर्दर यूज़ करना है तो उसको जनरेटर से कपल कर देंगे, एंड दैट जनरेटर स्टार्ट्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी because the generator converts the mechanical energy into the electrical energy. अब फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज जो होता है वो मैकेनिकल फोर्स के बिहाफ पे ही एक एनर्जी स्टोरेज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कंपोनेंट वगैरह देख सकते हैं आप। फ्लाईव्हील सिस्टम आर नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर सिंस दे आर ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम कंटेनमेंट। Therefore, the hybrid vehicle with flywheel systems can run without any problem at very cold or hot areas. And flywheel systems can store more energy per system weight compared to chemical batteries. Second point tells the very important significance of the flywheel. Actually, flywheel is not temperature sensitive. Its sensitivity for the temperature is not more, and due to that reason, if any vehicle having the flywheel, then the either the winter season are there or the summer season are there, it means the temperature, whatever the temperature is there, it means the energy level maintains itself. But if you talk about the battery, then due to the lower temperature, the energy uh, amount may vary. So the flywheel is very beneficial for uh, as a component in the vehicle or at any place in comparison to chemical batteries. The flywheel system is a very efficient energy storage device, and it can be used for various applications. फ्लाईव्हील सिस्टम को आप बहुत एफिशिएंट एप्लीकेशन के तौर पर जान सकते हैं, और क्या भी है इसको कई सारे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं जहाँ पे कि कभी एनर्जी ज़रूरत पड़े तो वो फ्लाईव्हील से एनर्जी मिल जाए। ठीक है, व्हीकल वगैरह में जो फ्लाईव्हील एनर्जी होती है वो उस समय में एनर्जी जनरेट करती है, उसको रिक्वायर होती है। ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक क्या होता है, फ्लाईव्हील से एनर्जी मिलती है। Our next one is superconducting magnet energy. Superconducting magnet energy storage. The superconducting magnetic energy storage systems store energy in the magnetic field created by the flow of direct current in a superconducting coil. The advanced system store energy within a magnet and release it within a fraction of a cycle. You know very well, if we talk about the Austen principle, then Austen says if the current flows within an conductor, what happens? Its environments get electricity, get electricity. Okay, here you can see the regenerative fuels and storage. I think this is very clear to you.
सी दिस डायग्राम। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज जो है रीजनरेटिव फ्यूल सेल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो रीजनरेटिव फ्यूल सेल स्टोरेज इसका बहुत बड़ा स्कोप है आज की डेट में। रीजनरेटिव फ्यूल इस स्टोरेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ये पाइप है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है टैंक से सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम जानते हैं आप, किसी चीज़ को कैटलाइज करना होता है, उत्तेजित करना होता है, और ये वही काम करेगा, हाइड्रोजन एटम को कैटलाइज करेगा, उत्तेजित करेगा, ठीक। कुछ पोर्शन इसके प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, मतलब H+ एक्सचेंज मेम्ब्रेन। कैटलिस्ट है, यहाँ से ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम जो टैंक से आ रहा है वो कैटलिस्ट कैटलाइज किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, निकल गया बाहर, अब ये फ्री हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो निकल गया। हाइड्रोजन एटम कैटलिस्ट पे गया, कैटलाइज किया, तो हाइड्रोजन रेड कलर यहाँ पे दिखेगा, रेड कलर का ये तुरंत हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से फ्लो होने लगा। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो होता है, जैसे फ्लो हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिए येलो कलर का बल्ब यहाँ पे ब्लू कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है फिर H+ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो भाई प्रोटॉन ही तो रहेगा, तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन ये फर्दर क्या रहेगा, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इसके कांटेक्ट में आएगा, बाहर ये एग्जॉस्ट क्या होगा, वाटर बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगा। A fuel cell is an electrochemical cell that converts a source fuel from combustible substances such as hydrogen, methane, propane, and methanol into an electric current. तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, प्रोपेन है, मेथनॉल है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करें, इसके लिए हमको फ्यूल सेल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फ्यूल सेल का एक डायग्राम तुम देख सकते हो। यहाँ पे इन कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स में से हम हाइड्रोजन को लिए, इसी तरीके से मीथेन भी ले सकते हैं, प्रोपेन भी ले सकते हैं, मिथेनॉल भी ले सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय अ केमिकल रिएक्शन। फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है किस बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल रिएक्शन। Every fuel cell has two electrodes, one positive and one is negative. Positive electrode is known as anode, negative electrode is known as cathode. On positive side, oxidation takes place, on negative side, reduction takes place. And these reactions that produce electricity take place at the electrodes. Hydrogen is the basic fuel, but the fuel cells also require oxygen. One great appeal of fuel cell is that they generate electricity with great little pollution. Much of the hydrogen and oxygen used in generating electricity ultimately combine to form a harmless byproduct, namely water. यहाँ पे देख सकते हैं आपको एज एन एग्जॉस्ट जो है वाटर निकल रहा है, और वाटर क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। वाटर इको फ्रेंडली होता है तो कोई भी हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं होगी इन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनवायरनमेंट। फिर यहाँ पे लास्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। ये इलेक्ट्रिसिटी इस कंप्रेस को एयर को कंप्रेस करके या कंप्रेस्ड एयर का फॉर्म होगा, और फिर से जो इलेक्ट्रिसिटी
से कंप्रेस्ड एयर हुई है, वो फर्दर जो कंप्रेस्ड एयर है वो एयर टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको क्या करेगा, फिर से एक मीडियम का काम करेगा. देन वी कैन सी एनर्जी फ्रॉम सोलर और विंड and even electricity from a thermal power plant during off-peak period may be utilized to compressed air by compression, and same air may be utilized to produce electricity during peak hour. Compressed air energy storage is done in underground caverns and abandoned mines. यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम कंप्रेशन. यहाँ पे कंप्रेस एयर मिल जा रहा है यहाँ पे. तो इस तरीके से साइकिल हमारी क्या होगी, मेंटेन रहेगी. आई थिंक दिस वुड बी वेरी क्लियर टू यू. ये ना बैटरीज की अगर हम बात करें, मान लो कि कोई बैटरी है. एक चीज़ पता होती है, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस ये सारी चीज़ें होती है. अगर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, तो फर्दर H प्लस और सल्फेट आयन में ब्रेक होगा. ठीक, यहाँ पे बैटरी में एक नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है पॉजिटिव एंड की ओर. इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स और करंट का. ठीक है, तो उस करंट से क्या होता है, ये बल्ब फ्लो करने लगता है. ठीक, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. तो इस तरीके से बैटरी जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. The main conversion are here in the case of battery, that is to convert the chemical energy of fuel into the electricity. How a battery works, from this diagram you can see. I think the energy storage is very clear to you. अब एक पंप स्टोरेज बच गया था. व्हाट इज द पंप स्टोरेज? यहाँ पे देख सकते हो डैम है, डैम से यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, कुछ प्रेशर हुआ है इसमें. A pumped storage hydropower plant may store those energy by pumping water from a lower reservoir to a high pond. Pumped storage क्या होता है, pumped storage hydropower plants क्या होता है, वो ह्यूज एनर्जी को स्टोर करता है by pumping from a lower reservoir to a high pond. In a pumped storage hydropower plants, we usually make the height of the reservoir equal to a small hill, and at bottom a cavity is made so that water may not run away downward. The water pump is pumped during off-peak times and may be utilized to generate electricity. Other innovations may store electricity in the small quantity, but pumped storage hydropower plants may store electricity in megawatts or even gigawatts. वाटर को pumped storage hydropower plants may store huge energy by pumping water from a lower reservoir. जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को पंप करके आप हायर हाइट पे पहुंचा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा. तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूजुअली हम हाइट ऑफ द रिजर्वायर्स जो होता है स्मॉल हिल और बॉटम एट बॉटम कैविटी बन जाती है, जिससे कि क्या होता है वाटर नीचे नहीं आता है, डाउनवर्ड नहीं आता है. ठीक है, water is pumped during off-peak times and may be utilized to generate electricity. इससे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे वाटर को पंप कर लेते हैं. और इसके लिए फिर क्या करते हैं, उसे जब रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. अदर इनोवेशंस में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन द स्मॉल क्वांटिटी. और इनोवेशंस भी हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, बट in this case what happens, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो
काफ़ी ज़्यादा होता है।